ہم پورے گلے تھے یہاں پر، پورے ٹائم پر ہم یہاں پر پہنچ گئے. خدا کے شکر گزار ہیں، خدا نے ہمیں موسم دیا تاکہ ہم اس کی بات کر سکیں. ہم بائبل قدس کے اندر سے سیکھ رہے تھے بیماری کی حوالے سے. ہمارا جو ٹاپک تھا وہ چل رہا تھا، کون بتائے گا، کسی کو پتا ہے بائبل کے متعلق بائبلی تعلیم ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہم نے بہت ساری باتوں کو سیکھا. کوئی تھوڑی بہت ہی باتیں آپ کو یاد ہوں، کسی کو کوئی یاد بات ہو بتا سکتا ہے جی. پھر ہم اگلی بات کو شروع کریں گے. ہم نے سیکھا تھا کہ بیماریوں کی وجوہات کیا ہے. ہم نے یہ سیکھا تھا. آج ہم سیکھیں گے کہ جب بیماری آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. بیماری آ گئی ہے، کسی وجہ سے آ گئی ہے، تو پھر وہ بیماری جا کیسے سکتی ہے، ہمیں اس بیماری میں کرنا کیا چاہیے. آج ہم اس بات کو سیکھیں. ہمیں اور یہ جب ٹاپک ختم ہو جائے گا پھر ہم چند ایسے سوالوں پر کلام کو سنائیں گے جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ان کے بارے میں بھی ہمیں بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو ان باتوں کو پتہ ہو. امین. کوئی بتائے گا پچھلے سنڈے میں کیا سیکھا تھوڑا سا جی. زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اور فکر اور پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے بیماری آتی ہے. ویری گڈ. اور اگلے فرنٹ والے جاگ دے پچھلے سکتے ہیں جی. کون بتائے پیچھے سے تو باجی بتائے. ہاں جی سبا ہے نیتا سنیتا نو. ابھی میں آپ سے پوچھوں گا جو بات میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو آج پوچھوں گا، اور جب تک آپ کو یاد نہیں ہوگی میں آپ کو جانے دوں گا پاؤں دے دوں گا. ٹھیک ہے. امین. بھائیوں میں سے کوئی کسی کو کوئی بات یاد ہے؟ اندر ساڑتے رہنا، اندر ساڑتے رہنا، ایک بڑی کوڑ دے رہنا، یہ ایک بڑی بات ہے. اندر کوڑ دے رہنا، اندر ساڑتے رہنا، سوچتے رہنا. ہاں یہ ایک بڑی بات انہوں نے بتائی ہے، کڑتے رہنا. تو آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پہلی بات جو اس کے اندر ہمیں سیکھنے کی ہے وہ ہے غیر معبودوں یا عالموں کے پیچھے نہ بھاگو. بائبل مقدس کے اندر یہ بات ہمیں واضح ملتی ہے. ہم ابھی اس حوالے کو پڑھتے ہیں. پہلی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں غیر معبودوں یا جو عالم ہوتے ہیں، آمد فاضل ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نہ بھاگو. آپ اکثر ٹی ویوں پر ایڈ دیکھتے ہیں، فلانا کالی علم دا عالم، فوراً رشتہ پہ فوراً بیاہ. خدا کا کلام جو ہے وہ کیا بیان کرتا ہے؟ دوسرا سلاطین پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم چوتھی آیت تک پڑھیں گے، جس میں لکھا ہوا ہے اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا اور اخزیا اور جاملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا. سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اقلون کے دیوتا بال-زب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں. لیکن خدا کے فرشتے نے ایلیا تشبیہ سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اقلون کے دیوتا بال-زب سے پوچھنے چلے ہو. اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ
तू जरूर ही मरेगा। अब उस शख्स को ये चाहिए था कि वो इस बात पर गौर करता कि वो खुदा के कलाम की तरफ रजू लाता, खुदा के किसी खादम को बुलाता। अखसिया बादशाह ने क्या किया? उसने बाल देवता को जाकर अपने खादमों को भेजा के जाकर बाल देवता से पूछो तो मैं शिफा पाऊंगा कि नहीं, मैं शिफा पा जाऊंगा कि नहीं। तो खुदा के कलाम के अंदर बात लिखी है, खुदा को इस बात पर गुस्सा आ गया और खुदा ने एलिया तशबी से कहा जा जाकर उसके काजों को बता दे। क्या इस्राएल में खुदा नहीं जो अकरूम के देवता बाल जब से पूछने चले हो? क्या इस्राएल में खुदा नहीं है? क्या इस्राएल का खुदा नहीं है जो तुम बाल के उस देवता की पूजा करने जा रहे हो? खुदा ने अपने बंदा एलिया को कहा, उसके कासों को जाकर कह दे, खुदा यूं फरमाता है कि अब तू इस पलंग से जिस पर तू पड़ा है उतरने ना आएगा, बल्कि क्या होगा? तू जरूर ही मरेगा। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह किया, वो गैर माबूदों के पीछे भागा। ज़बूर के अंदर लिखा है, ज़बूर 16:4 के अंदर गैर माबूदों के पीछे भागने वालों के गम क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब तुम गैर माबूदों या आमलों के पास जाते हो तो तुम्हारे दुख खत्म नहीं होते, तुम्हारे गम खत्म नहीं होते, बल्कि वो बढ़ जाते हैं। इस तरह अखसिया बादशाह ने इसको पैगाम भेजा कि वो बाल के देवता को पूछो जाकर, मैं भाग जाऊंगा या मर जाऊंगा। तो खुदा को इस बात पर गुस्सा है, क्या इस्राएल का खुदा नहीं है? इस्राएल में खुदा नहीं है कि तू उन गैर माबूदों के पीछे भाग रहा है जिनके अंदर कुछ नहीं। खुदा का कलाम जो है हमें इसी बातों से रोकता है, हमें ऐसे किसी भी गैर माबूदों के पीछे नहीं जाना जो दुनिया का नुकसान, जो जिंदगियों का नुकसान करते हैं, जिससे खुदा को गुस्सा आए। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है ज़बूर 16:4 में, गैर माबूदों के पीछे भागने वाले के क्या हो जाते हैं? गम बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम गैर माबूदों के पीछे ना भागें। दूसरी बात, बाइबल तबीब के पास जाने से नहीं रोकती। बाइबल जो है वो तबीब के पास जाने से नहीं रोकती, डॉक्टर के पास जाने से नहीं रोकती। इसके हवाले में पढ़ेंगे मत्ती 9:12 है, मरकस 2:17 है। जल्दी से निकालिए, जिस जिसको ये मिल जाए वो खड़ा होकर पढ़ दे। मत्ती 9:12 है, मरकस 2:17 है, लूका 5:31 है। जी पढ़ेंगे हम। खुदा तबीबों के पास जाने से हमें नहीं रोकता। उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों के तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को है। आमीन। किनको तबीब की जरूरत है? किनको तबीब की जरूरत है? बीमारों को। तंदुरुस्त क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? और डॉक्टर साहब चंगा पड़ा तो मैंने दवाई से मैं बीमार है। जो शख्स बीमार है वही तबीब के पास जाता है। तो खुदा जो है वो मना नहीं करता डॉक्टर के पास जाने से। आजकल लोग कहते हैं ओ भाई साहब सानू खुदा इतने शफा दे, या बाज लोग कहते हैं उनका मर्ज ऐसा हो कि जिसके लिए डॉक्टर जरूरी है और वो घर बैठे कहें कि मुझे यहाँ पे शिफा मिलेगी। तो ये अच्छा ईमान है, ये कम ईमान नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तबीब जो है, डॉक्टर जो है, ये भी खुदा के हाथ की कारीगरी। तो जो चीज़ डॉक्टर के जरिए से हो सकती है, अगर उसमें भी खुदा का हाथ ना हो, अगर उसमें भी खुदा बचाने वाला ना हो, तो याद रखिएगा
हम बच नहीं सकते। बच एक शख्स जो है, अभी मैं रात को देख रहा था, एक छोटे बच्चे को चाकू लगा उसका दिल पे कराची के अंदर, और डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की, और मेरे ख्याल में दिल के अंदर जिसको मतलब ये लग जाए वो जिंदा नहीं रहता, तो डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की और वो बच्चा जिंदा है। तो इसमें वजह क्या है? अगर खुदा ने उसकी जिंदगी रखी हुई थी तो डॉक्टर ने उनका ऑपरेट किया और वो जी रहा है। तो जब खुदा की मर्जी ना शामिल होती तो फिर शायद वो जिंदा ना रहता। अगर डॉक्टर इलाज करते हैं, तबीब के पास आप जाते हैं, तो खुदा उसके अंदर भी शिफा को रखता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। बीमार जो है वो तबीब के पास जाते हैं, इसलिए डॉक्टर के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। जो बात जरूरी है, आप दवाई के साथ साथ दुआ भी करवाते रहें, ये दोनों इंतहाई जरूरी बातें हैं। मरकस 2:17 किसी ने निकाली जी, चले इसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं। तीसरी बात जो हमारे लिए है वो ये है, दवाई भी इस्तेमाल करें। हमें तबीबों के पास जाना है और दवाई भी क्या करनी है? इस्तेमाल करनी है। दवाई भी क्या करें? इस्तेमाल करें। जी, दूसरा सलातीन 20 बाब और 7 आयत को पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर इस्तेमाल की गई दवाई, कैसी दवाई इस्तेमाल की गई, हम पढ़ते हैं इसके अंदर। दूसरा सलातीन 20 बाब और उसकी 7वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। लिखा है, और यूसाया ने कहा, किसने कहा? यूसाया ने। यूसाया की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह ने हैकल के अंदर कौन सा सहीफा पढ़ा? कौन सा पढ़ा? यूसाया का सहीफा पढ़ा, और ये यूसाया की किताब के अंदर लिखा है, और यूसाया ने कहा। किसने कहा? यूसाया ने कहा, अंजीरों की टिकियां लो। किसकी टिकियां लो? अंजीरों की टिकियां लो। सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा था, वो अच्छा हो गया। हालेलुया। दवाई जो है उसको इस्तेमाल करें आप। जब खुदा के बड़े सूरमा जिनका बाइबल के अंदर जिक्र मिलता है, वो इस बात के लिए खड़े हैं, ताकीद करते हैं। क्या यूसाया के पास खुदा की कुव्वत नहीं थी? क्या यूसाया के पास खुदा का ज़ौक़ नहीं था? क्या यूसाया के पास खुदा का कलाम नहीं था? सब कुछ था उसके पास। जो खुदा के रूह के वसीला से लिख सकता है, क्या वो रूह के वसीला से क्या खुदा बाप के नाम से शिफा नहीं दे सकता था? दे सकता था, पढ़ो से शिफा। लेकिन उसने क्या कहा? अंजीरों की क्या करो? टिकियां लो। और सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो क्या हो गया? अच्छा हो गया। दवाई इस्तेमाल करें, उससे में भी शिफा है, और वो खुदा की तरफ से है। हम मिसाल के तौर पर, खुदा की इसमें मर्जी थी कि वो 12 वर्ष की औरत जिसको 12 वर्ष से खून जारी था, उसने मेरे का कोई डॉक्टर कोई तबीब न छोड़ा होता, लेकिन उससे खुदा का जलाल जाहिर होना था, इसलिए उसने कहा मैं खुदा का पलड़ा छोड़ूंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। ये शिफा उसके लिए। डॉक्टर्स की दवाइयों में उसकी शिफा नहीं थी। शिफा जो थी वो यीशु मसीह के पलड़ा छूने की वजह से। इसलिए दुआ और दवाई जरूरी है। आप दुआ भी करवाएं और दवाई भी इस्तेमाल करें। तो लिखा है, चौथी बात जो हमारे लिए है, तबीबों से पहले खुदा से रजू करें। जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, उससे पहले आप खुदा के खादमों को बुलाएं, खुदा के लोगों को बुलाएं, उनके पास चले जाएं
उनसे दुआ करवाएं ताकि खुदा आपको उस काम से शिफा दे, या वो डॉक्टर्स जो आपका इलाज कर रहे हैं खुदा उनको हिकमत दे ताकि आपका इलाज अच्छे तरीके से हो सके। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूदा तौर पर होती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूदी तौर पर ठीक होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दवाई के जरिए से ठीक होते हैं। इसलिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम तबीबों से भी पहले खुदा से क्या करें, रजू करें, खुदा की तरफ जाए। दूसरा तवारीख 16:12, दूसरा सलातीन 8:8 को पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख 16:12 को पढ़ेंगे, और एक भाई बहन निकाले दूसरा सलातीन 8:8, 16:12। और आसा की सल्तनत के 39वें बरस उसके पाँव में एक रोग लगा, और वो रोग बहुत बढ़ गया, तो भी अपनी बीमारी की उकरामत तारीफ नहीं, बल्कि तबीबों का काना हुआ। हमें ना सिर्फ तबीबों के पास जाना है, बल्कि खुदा के पास भी अपने आप को रखना है। खुदा जो है हमें यही सिखाता है कि आप, क्योंकि हमने सीखा ना, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि असी डॉक्टरों को जाना, दुआ नहीं करानी, कुछ कहते हैं असी दुआई करानी है, असी डॉक्टरों को नहीं जाना। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि आप डॉक्टरों के पास भी जा सकते हैं, आप खुदा के पास भी आ सकते हैं। वो रोग जो खुदा से शिफा पाता है वो खुदा ही उसे शिफा देता है, या वो रोग जो किसी के जरिए से खत्म होगा, डॉक्टर्स के जरिए से खत्म होगा, खुदा उसके वसीला से काम करता है। काम में एक ही करता था, कौन? खुदा। कौन काम कर रहा होता है? खुदा ही काम कर रहा होता है। इसलिए हमें इस बात की परेशानी नहीं लेनी कि खुदा जो है इस तरह से मेरा इलाज नहीं कर रहा और मैं ठीक नहीं हो पा रहा। खुदा चाहता है कि आप डॉक्टरों के जरिए से ठीक हो। हमें फिर हमारे लिए पांचवी बात जो है, भरोसा रखें कि खुदा हमारे हालात से वाकिफ है। भरोसा रखें कि खुदा जो है वो हमारे हालात से क्या है? वाकिफ है। 32:10 से 31 आयत को पढ़िए। मत्ती सूर की मार्फत हमारे खुदा यीशु मसीह की लिखी गई जी, उसका 10वां बाब, उसकी 29 से 31वीं आयत को पढ़ें। जी पढ़ने का नाम बैठे। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हमें खुदा यीशु मसीह जो है हमारे हालातों से वाकिफ है। कोई भी शख्स इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि खुदा यीशु मसीह को हमारी जिंदगी के बारे में पता नहीं। हम सब के बारे में खुदा जानता है, हम सब के बारे में खुदा जानता है किसके कैसे हालात हैं। शायद हम एक दूसरे के हालात ना जानते हो, लेकिन खुदा जानता है, और उसकी मर्जी के बगैर एक चिड़ी भी जो है वो पर नहीं मार सकती। यहाँ तक कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। चाहे भावे वो मेरे वांगू ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ पूरे वाल ले ते भावे घट, सबके बाल जो है वो क्या है? गिने हुए हैं। खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और खुदा जो है हमारे हालात से वाकिफ है। किसको किस चीज की जरूरत है खुदा जानता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम उस पर भरोसा रखें। किस पर भरोसा रखना है? किस पर भरोसा रखना है? किस पर भरोसा रखना है? खुदा कहता है कि हमें गैर मबूदों के पीछे नहीं। किस पर भरोसा रखना है? भरोसा रखें कि खुदा
खुदा हमारा साफी है। भरोसा रखें कि खुदा हमारा क्या है? साफी है। जब हम ये भरोसा रखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह शिफा दे सकता है, हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं, बहरे सुनना शुरू हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, तो वही हमारा साथी है। हालेलुया। उसके बगैर हम शिफा नहीं पा सकते, उसकी मर्जी के बगैर हम तंदुरुस्त नहीं हो सकते। आप जितने मर्जी गैर मौजूदों के पीछे भाग कर देखें, आप जितने मर्जी गैर मौजूदों के पीछे भाग कर देखें, खुदा जो है जब तक आपको शिफा नहीं देगा आप नहीं बच पाएंगे। खुदा हमारा शाफी है, खुदा यीशु मसीह हमारा क्या है? शाफी है। शिफा देने की कुदरत उसके पास है। सातवीं बात, बीमार खुद खुदा से रजू करें। जो बीमार हैं वो क्या करें? खुद खुदा से। जो बीमार शख्स है उसको भी जरूरत है कि वो खुद भी दुआ करे, खुदा मैं इस मुश्किल से फंस गया, मैनू कढ़, मैनू ये बीमारी ने जगड़ लिया, मैनू भी कर, इस बीमारी को कढ़। खुदा आपकी सुने। दूसरा सलातीन 20 बाब 1 से 1 से 7 आयत को पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। ये लूका 8 बाब 43 से 47 आयत को आप पढ़ेंगे, आपको बाइबल के अंदर ये जिक्र मिलेगा कि बीमार खुद भी खुदा से रुजू करे। जब आप खुद रुजू करेंगे तो यकीनन खुदा आपकी सुनेगा। आमीन। तो सबसे जरूरी ये बात है कि जो बीमार है वो खुद पहले खुदा से रुजू करे और फिर बीमार के अजीज खुदा से रुजू करे। आठवीं बात, जो बीमार के अजीज हैं वो खुदा से क्या करे? रुजू करे। अगर एक बीमार शख्स है वो अपने घर के अंदर है और वो घर के अंदर दुआ कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और अगर उसके अजीज चाहते हैं कि वो किसी खुदा के मतलब खादम को, पास्टर्स को या खुदा के लोगों को, बुजुर्गों को बुलाए और उनके लिए दुआ की जाए, तो ये जरूरी है कि बीमार के अजीज जो है वो खुदा से रुजू करें। उनके रिश्तेदार भी खुदा से दुआ कर सकते हैं। जो रिश्तेदार हैं वो भी अपने अजीज के लिए क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं। ये खुदा हमें इजाजत देता है कि हम अपने अजीजों के लिए दुआ करें। तो ये जरूरी है कि बीमार खुद भी दुआ करे, खुदा की तरफ रुजू करे और बीमार के अजीज भी खुदा से उसके लिए दुआ को मांगे। और फिर नौवीं बात है, दुआ के लिए खुदा के खादमों के पास जाएं या उनको अपने पास बुलाएं। या तो आप उनके पास जाएं या फिर खुदा के खादमों को अपने पास बुलाकर दुआ करवाएं। तो यकीनन खुदा तब भी आपकी जिंदगी पर रहम करेगा और खुदा आपको शिफा देगा। इसका हवाला जो है दूसरा सलातीन बाब नंबर 5 है कि 5 बाब 14 से 15 आयत है। अगर आप नुमान कोड़ी को देखें तो उसकी एक बड़ी मिसाल मिलती है। नुमान कोड़ी जो है वो खुद चलकर आया। नुमान कोड़ी की तरह खुदा यीशु मसीह के पास आइए, बाप के पास आइए ताकि वो आपको शिफा दे। इसलिए भरोसा रखें कि खुदा शिफा का जो अम्बा है वो भी शिफा देता है। 10वीं बात जो है हमारे लिए, भरोसा रखें कि शिफा का एक वक्त है। शिफा का एक, ये पढ़ेंगे हम बस 3 बाब 3 आयत जी, पढ़ने में रामबाई करें कोई भी जिसको मिल जाए। 3 बाब 3 आयत। शिफा का एक वक्त है, मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक। हमने इस बात को सीखा कि बाज़ औक़ात बीमारी इस वजह से आती है ताकि इंसान जो है वो मौत की तरफ जाता है। जो वक्त पूरा हो जाता है ना, फिर बीमारी को है तो बीमारी नहीं बनती। क्या बनती है? बीमारी एक बहाना ही बांध दिए तो बीमार हो गया। तो मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक। जब खुदा ने शिफा देनी होती है तो खुदा उस वक्त के अंदर शिफा देता है। इसलिए
वक्त को गनीमत जाने, खुदा किसी भी वक्त आपको शिफा दे सकता है। शिफा देने का एक वक्त है। हो सकता है आप में से कईयों को इस वक्त शिफा हो जाए, हो सकता है कि किसी को कल शिफा हो जाए, हो सकता है किसी को एक माह के बाद शिफा हो सकता है कि किसी को एक साल लग जाए। शिफा देने का एक वक्त मुकर्रर किया गया है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा का एक वक्त है। ग्यारहवीं बात, भरोसा रखें कि हमारा जीना और मरना खुदा के वास्ते है। पौलुस रसूल एक बड़ी बात को कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए हालेलुया। ऐसी बात हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। दुनिया की कोई बीमारी लग जाए, दुनिया की कोई बीमारी हमें याद दबाए, लेकिन हमें पौलुस रसूल की तरह हिम्मत को बढ़ाना और कहना है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए क्या है? हम दानियल की बात को सीखते हैं, दानियल के दोस्त और उनके अल्फाजों को हम देखते हैं जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं आग से छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो कहते हैं हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो हमें आग से छुड़ाने की क्या करता है? ताकत रखता है। तो भी अगर वो नहीं छुड़ाता तो भी हम ए बादशाह तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। वो कहते हैं मरना तो गवारा है पर मूरत को सजदा करना गवारा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि गैर मबूदत के पीछे भागने वालों के काम क्या होते हैं। वो बयान करता है वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं आग से छुड़ाने की ताकत रखता है। सो हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिस खुदा की पूजा करते हैं, जिस खुदा की हम सितारिश करते हैं, जिस खुदा को हम जानते हैं, जिस खुदा की हम मना सराई करते हैं, जिस खुदा ने हमारे लिए अपना खून बहाया है, जिसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं, हम जब उसके हजूर आ जाते हैं तो हम शिफा पाते हैं। हालेलुया। हमें इस बात पर यकीन रखना है और अपने ईमान को बढ़ाना है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए, यानी कि मैं जीऊं तो यीशु के लिए और मरूं तो यीशु में मरूं। हमें जरूरत है कि हम खुदा यीशु से करें और उसका हमेशा अपनी जिंदगी को बढ़ाते चले जाएं। मैं खुदा आपको बरकत